اس پر مزید بات کرنے کے لیے عادل عباسی سینئر اینکر پرسن انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ عادل بتائیے گا آج کے کیس میں اگر بات کی جائے مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، کیا کہیں گے آج کے پروسیڈنگ کے حوالے سے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا پہلا پہلو تو یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدیب الزمان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی اور اس سے پہلے بھی سزائیں سنائی گئی۔ جو آج 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں، بڑی اس کی تفصیل بھی سامنے ہمارے آ گئی ہے کہ کس کو کتنے سال سزا ہوئی ہے۔ ان کے پاس ظاہر ہے یہ بھی آپشن ہے کہ یہ اپنی جو ہے وہ ہائر کورٹس میں جا کے کیس اپنا کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو وکیل کرنے کی، اور اس کے بعد اپنا کیس فردر کنٹیسٹ کرنے کی بھی اسپیس ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن ایک اور اس کے اندر پہلو ہے وہ یہ کہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے پچھلی دفعہ بھی پریس کانفرنس جو پریسر میں کہا گیا تھا جب سزائیں ہوئی تھی، اور ابھی بھی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، صحیح پتہ چلتا ہے کہ بہت ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں، کیونکہ اس سارے پروسیس سے بہت کرٹیسزم ہو رہا تھا۔ اس سارے پروسیس کے اوپر یہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اور یہ واقعی ڈیلے ہوا ہے، یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جو ہم بین الاقوامی پریشر دیکھ رہے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے ساتھ بالخصوص امریکہ کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے، یہ اس طرح کا میسج بھی ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کا دباؤ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا، خواہ وہ کہیں سے بھی ہو۔ تو پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ اپنا ایک نظام موجود ہے، اور پاکستان اس نظام کے تحت جو ہے اس سارے پروسیس کو فالو کرے گا، چاہے وہ سزائے دلوانہ ہو، چاہے جو ہے وہ جزا ہو یا سزا ہو یا تو ریلیف ہو، تو وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگا۔ اور ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھی ہے اس سارے پروسیس کے پیچھے کہ پاکستان کسی قسم کا بھی پریشر ٹالریٹ نہیں کرے گا۔ اس کی ایگزامپلس بھی ہیں، امریکہ ماضی میں بھی کہتا رہا لیکن پاکستان نے شکیل آفریدی نہیں دیا، اس کی اور بھی ایگزامپلس ہیں، پریشر آتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ دو پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہمارا آئینی قانونی نظام اس کے تحت اور ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس کے تحت ان کو وہ سزائیں ہو گئی ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس کے تحت سزائیں ہوئی ہیں۔ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے تحت سزائیں ہوئی تھی، پچھلے دور میں بھی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی سزائیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ریلیف اگر یہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ہائر کورٹ سے لے سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں آئین میں، قانون میں، ہیومن رائٹس میں آپ کو اسپیس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی جتھا، کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی جماعت جو ہے وہ جو دل چاہے کرے، اس کی کوئی پوچھ گچھ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وہ سیاسی جماعت ہے۔ تو جو بھی کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا یا پھر جو انسٹالیشنز ہیں، اسٹیٹ انسٹالیشنز ہیں، ان کے اوپر اٹیک کرے گا، تو ول بی ڈیلٹ آئرن ہینڈڈلی، اور اس کو جو ہے سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سزا ہے اس کے دو پہلو ہیں، جس کا میں نے آپ کو بتایا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم نے ظاہر ملٹری کورٹس میں ایک پروسیس کے تحت دیکھا کہ یہ سارا کچھ کر کے ان کو سزائیں دی ہیں، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اس میں ایک میسج ہے کہ پاکستان کسی قسم کا پریشر ٹالریٹ نہیں کرے گا، پاکستان اپنے آئین قانون کے تحت ہی جو ہے وہ کسی کو سزا یا جزا دے گا۔ بالکل عادل، اس میں ہم نے نام دیکھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ کا بھی ایک نام آیا، اور ساتھ میں جو اہم پرومننٹ نیم تھے ایم پی اے یا ایم این اے، ان کے بھی نام آئے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتے جو فیض حمید کا کیس ہے اس میں بھی اسی طرح کا اسپیڈی ٹرائل ہمیں نظر آئے گا؟ دیکھیے، وہ پہلے تو ظاہر ہے وہیں سے شروعات ہوئی ہے، وہیں سے انہی کی خبر آئی ہے، اسی کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیولین کے نام سامنے آئے۔ اصل تو معاملہ پہلے جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی کیس کی خبر جب آئی ہے تو اسی سے ہوا ہے کہ ان کو بھی چیف جنرل کورٹ مارشل کے تحت جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا۔ تو یہ تو بعد میں آیا معاملہ، اور یقینی طور پر جو ہے وہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں دکھائی دے رہا، اور نہ دکھائی دے گا، اور نہ دکھائی دینا چاہیے۔ کسی بھی صورت جو ہے وہ اسپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سارے کے سارے کیس کی پھر کوئی وقت ہی نہیں بچے گی اگر ان کو کسی قسم کا اسپیس مل جائے گا اور ان لوگوں کو سزائیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ
तो ये ना होगा और ना होता दिखाई देगा। आदिल एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम बार बार देख रहे हैं कि जो हुकूमत है, जो हुकूमती इत्तेहाद है, उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक मास्टर माइंड को सज़ा नहीं होगी तो तमाम तर जो केसेस हैं, तमाम तर जो सज़ाएँ हैं वो बेवजह नज़र आएंगी। आप समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में बानी PTI की तरफ भी ये मामला बढ़ सकता है? क्योंकि उनके भांजे के हवाले से भी, जो कि उनके लॉयर भी रह चुके हैं, हसन नियाज़ी साहब, उनके हवाले से खबर आ रही थी, कुछ दिनों पहले गर्दिश करी थी कि शायद उनकी बेल हो जाएगी, कुछ केसेस में प्रूफ्स नहीं है, लेकिन आज ये चीज़ साबित कर दी गई है नहीं जी, तमाम तर शवाहिद मौजूद थे। उनको सामने रखते हुए अगर अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सज़ा उन्हीं की है, 10 साल कैद बामुशक्कत उनको दी गई है। इसके अलावा जो और लोग हैं उनको 10 साल की सज़ा नहीं सुनाई गई। जाहिर है जब वो यूनिफॉर्म लटका कर झंडे की तरह लहरा रहे होंगे और फखरिया तौर पर जो है वो इनकलाब की नवीद सुना रहे होंगे, एक कोर कमांडर के घर में घुसकर जो है वो यूनिफॉर्म लहराते हुए वो ये मैसेज दे रहे होंगे कि वो जो है वो इनकलाब ले आए हैं, तो ज़ाहिर उसी तरीके से उनका चला होगा, उसी तरीके से जो है वो सबूत इकट्ठे किए गए होंगे और उसी तरीके से उनको सजा दी गई होगी। जाहिर है उनके पास राइट है कि वो हायर कोर्ट में अपना केस कंडक्ट करे, लेकिन वो तो बहुत विजिबल नजर आ रहे थे हमें फुटेज के अंदर, बहुत प्रोमिनेंट थे उस सारे फुटेज के अंदर। तो ये मामला है। दूसरी चीज जहाँ तक आपने बात की है मास्टरमाइंड के बगैर तो ये मामला ही सारा बेकार है। अगर आप ताकतवर को सजा ना दें और जो है वो कमजोर को दे दें तो ये काबिल कबूल बात नहीं। अगर कोई मास्टरमाइंड है जो कि यकीनन है, वो कौन है ये काम अदालतों को तय करना है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। एविडेंसेस कलेक्ट करना प्रोसिक्यूशन का काम है। अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है तो फिर उन्होंने ये एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं। अगर आप मास्टरमाइंड तक ना पहुंचे और सिर्फ इन्हीं लोगों को सजाएं नहीं तो इन सजाओं की भी वो वक्त तो नहीं रहेगी। सही। तो इसलिए मास्टरमाइंड तक पहुंचना बहुत जरूरी है, उस मास्टरमाइंड को सजा मिलना बहुत जरूरी है, वरना अगर आप ये नहीं करते तो ये सारा अमल बेमानी लगता है। सही है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा होगा भी और होना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन सजाओं की भी वक़्त नहीं रही। आदिल, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि गर्दिश भी कर रहा है। एक जानिब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, एक बैठक लग चुकी है, 2 जनवरी को दूसरी बैठक लगने वाली है। कहा यह जा रहा था कि इस अरसे में शायद हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट कुछ हल्का हाथ रखेगी और इस तरह की खबरें नहीं आएंगी, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग खबर आज जो आई है, इसके बाद आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे? मैं मुज़ाकरात से पहले चाहता हूँ मैं ज़रा ये, क्योंकि अभी खबर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें मुलव्वस अफराद को ये मज़ीद सजाएं दी गई हैं। लेकिन सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है ना, ये कोई नया मामला नहीं है। 1972 से 2023 तक 1875 केसेज आए कानून के मुताबिक जो है वो अभी तक सॉल्व हुए और जिन्हें आपकी हायर कोर्ट ने एडमिट भी किया। और तहरीक इंसाफ के दौर में, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 180 प्लस सिविलियंस के ट्रायल हुए। तो इसलिए जो है ये प्रोपेगेंडा करना कि ये सिर्फ अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो रहा है। ज़ाहिर अगर पॉलिटिकल पार्टी GST के गेट पर अटैक करेगी, अगर पॉलिटिकल पार्टी कोर कमांडर हाउस में जाएगी, अगर ISI के ऑफिस के अंदर घुस के तोड़फोड़ करेगी, अगर जो है वो बेसिस के ऊपर अटैक करेगी तो ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली वो उनको डील किया जाएगा। अब अगर आपका सवाल मुज़ाकरात का देखें, मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं तो इसके फेवर में हूँ, हक में हूँ। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल होते हैं। बड़े से बड़ी जंगों का सोल्यूशन भी टेबल टॉक से ही निकलता है। तो पॉलिटिकल पार्टी की तो स्ट्रेंथ ही डायलॉग होता है। पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ कभी भी जो है वो वायलेंस नहीं हो सकती और ना ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वायलेंस से ज़्यादा अरसे सर्वाइव कर पाती है। हमने देखा है पाकिस्तान की मिसाल, जिन सियासी जमातों में शिद्दत पसंदी थी या जिन सियासी जमातों ने जो है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, उन पार्टीज की आज वक़्त नहीं रही है। इसी तरह दुनिया में भी जो वायलेंट ग्रुप होते हैं, जहाँ पर वायलेंस का एलिमेंट होता है, वो ग्रुप कुछ अरसे के लिए तो बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन उसके बाद उनका सर्वाइवल नहीं रहता। तो इसलिए ये तो एक एलिमेंट है कि वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अब आते हैं डायलॉग होना चाहिए, सीरियसनेस के साथ होना चाहिए। पॉलिटिशियंस को ही सोल्यूशन निकालना है, पॉलिटिशियंस को ही जो है वो कम्पीट करना है, पॉलिटिशियंस को ही आगे बढ़ना है। तो एक दूसरे के साथ डायलॉग करके फिर एक दूसरे को स्पेस देनी है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि नहीं, गवर्नमेंट समझे हम बहुत पावरफुल है, हमें क्या जरूरत है मुज़ाकरात करने की, हमारी तो हुकूमत चल रही है, हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उनके लिए भी ठीक नहीं है ये, क्योंकि ऑपोजिशन को आप रोड इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऑपोजिशन सोचे नहीं हम तो गवर्नमेंट को चलने ही नहीं देंगे और जैम कर देंगे। आदिल मेरा पॉइंट ये था कि इस फैसले के बाद क्या मुज़ाकरात पे कोई फर्क पड़ सकता है, क्योंकि रिलेट किया जाएगा, जाहिर सी बात है इसमें तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल जो बाहर इस पर ग्रुप मुज़ाकरात कर रहे हैं वो तो बड़े रंगीन कह रहे हैं कि आप जो है वो उनको सजाएं दे दें, जो 9 मई वाले लोग हैं सबूत दे दें और सजाएं दे दें
हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं उन लोगों से, तो PTI तो इसको डिसऑन कर देगी अगर देखेगी कि मामला इनकी तरफ जा रहा है। तो साफ सा है कि आप अगर सबूत हैं, शवाहिद हैं, तो इनको सजाएं दे दें। हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है सारी बात से। तो मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात से कोई फर्क पड़ेगा, और मुज़ाकरात जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन मुज़ाकरात का नतीजा तेज होने के लिए दोनों तरफ से सीरियसनेस की बहुत ज़रूरत है, और मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात से फिलहाल कोई नतीजा निकल। लेकिन आदिल, जिस तरीके से भी कमेटी बना दी गई है मुज़ाकरात की अगली बैठक इनके तौर पर 2 जनवरी को होगी, तो आप समझते हैं कि उनका तो PTI का एक ही मुतालबा है कि जो बानी PTI हैं उनको रिहा किया जाए और दीगर जो मुजरिमान गिरफ्तार हैं उनको भी रिहा किया जाए? ऐसे में जब हम देख रहे थे ये सीरीज़ चल रही थी तो बार बार वो कहते थे कि बानी PTI की तरफ से हिदायत हैं, तो ऐसे में क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी? आप क्या समझते हैं सवाल से? देखिए, ये बात अक्सर हमने पूछी है PTI वालों से भी कि आप किस तरह कहते हैं कि हुकूमत जो है उनको रिहा कर दे। मसलन अदालतों को कहे, अदालतें हुकूमत के कहने पर रिहा करेंगी, तो वो कहते नहीं, आप जो है वो लोगों को इस तरह अपनी प्रोसिक्यूशन को कहें कि वो केसेस को इस तरह परसू ना करें, और उसके बाद इनको जो है जमानतें मिल जाएं और रिलीफ मिल जाए। एक तो ये PTI की तरफ से मौक़िफ़ एडॉप्ट किया जाता है कि भी इस तरह से भी रिलीफ मिल सकता है, या फिर जो है वो कहते हैं कि नहीं, हुकूमत जो है वो बैठे और संजीदगी का मुजाहरा करे और हमें बताए कि भाई ठीक है कि झूठे नए बोगस केसेस हैं, इनमें तो हम रिलीफ ले लेंगे, जो नए बोगस केसेस हैं वो ना बनाएं, तो इस तरह बात आगे चल सकती है और जमानतें होने दे जो लोग जेलों के अंदर हैं और उन पर नए केसेस ना बनाएं। लेकिन ये तो उसी वक्त हो सकेगा ना जब बदले में PTI भी उनके साथ बैठ के उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ देगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप उनसे ये कहें कि आप केसेस को परसू ना करें, प्रोसिक्यूशन जो है वो वीकनेस दिखाए और उनको रिलीफ मिल जाए, और साथ में आप कुछ देने को तैयार ना हो। उसके बदले में ज़ाहिर है आपको उनको कुछ टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, कोई रिलीफ देना पड़ेगा, तो टाइम इतना देना पड़ेगा जो अगले इलेक्शन तक बात चली जाए। तो देखना अब ये है कि इस सारे प्रोसेस से दोनों एक दूसरे को देते क्या है। गिव एंड टेक के बगैर तो कोई भी डायलॉग नहीं हो सकता ना। अगर गिव एंड टेक ही नहीं है तो डायलॉग किस बात का है? वो तो फिर डिक्टेशन है और इंस्ट्रक्शन है। तो अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी लीडरान को रिलीफ मिले, तो उनको भी ज़ाहिर हुकूमत को कोई ना कोई रिलीफ देना पड़ेगा। अगर हुकूमत उनको रिलीफ देती है तो कोई रिलीफ लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है अभी उनकी रिहाई और मेरा नहीं। आदिल अब्बासी, सीनियर एंकर, इस साने 9 मई के जो मुजरिमानों ने सज़ाएँ जो सुनाई गई उस पर अपना एनालिसिस पेश करते। साने 9 मई में मुलव्विस मज़ीद 60 मुजरिमान को आज सज़ाएँ सुना दी गई हैं और इनके बाकायदा तौर पर नाम भी सामने आ गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई केसेस पर शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद ये सज़ाएँ सुनाई हैं। इनमें प्रोमिनेंट नाम जो है वो हसनुल्लाह न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी, जिन्हें 10 साल कैद बमुशक्क़त सुनाई गई है। साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, जिन्हें 6 साल कैद बमुशक्क़त सुनाई गई है। जिन्हें हाउस हमले मुलव्विस मियाँ इबाद फ़ारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बमुशक्क़त सुनाई गई है। रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बमुशक्क़त सुनाई गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।